میں پڑھتے اور جانتے ہیں، اور اگر آپ ایمان مفصل کو پڑھیں پھر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ایمان کے ہر جز کے لیے رب کائنات نے بڑی محکم اور مضبوط دلیلیں فراہم فرمائی ہیں۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ہم اور آپ پڑھ لیتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ کل 7 اجزاء ہوئے۔ آمنت باللہ، ایمان پر، اللہ پر ایمان لے آنا، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آنا، و کتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان لے آنا، و رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آنا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لے آنا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لے آنا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم سے ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت کی مشیت سے ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ اور آخر میں والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لے آنا۔ یہ 7 اجزاء ہوئے۔ ایمان باللہ پر دلیل دیتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وجود ہی کو دیکھ لو نا، اپنے وجود کو دیکھ لو، یہ تمہارا ہاتھ، یہ تمہارا پاؤں، یہ تمہارا چہرہ، یہ تو اوپر کی ساخت ہے، ذرا اندر کی چیزیں دیکھو کہ اگر تمہیں ایک لمحے کے لیے آکسیجن سے دور رکھ دیا جائے تو پھر تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے پورے عالم کو دیکھ لو، کہیں سورج کا نظام ہے تو کہیں ستاروں کا نظام ہے، کہیں چاند کی گردش ہے تو کہیں سیارے ہیں، کہیں اور کچھ سی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تم خود اندازہ لگاؤ گے کہ جب ایک چھوٹا سا گھر بغیر گھر کے چلانے والے کے نہیں چلتا تو پھر یہ پورا نظام کون، یہ پورا عالم، ہول ورلڈ، یہ پورا کا پورا عالم بغیر کسی مدبر اور چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کو دنیا جو بھی کہے، ہم اس ذات کو جو اس پورے نظام کو چلانے والی ذات ہے اس کا نام اللہ دیتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، اور قرآن نے ارشاد بھی فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ کی ذات تنہا یکتا ہے، کسی کا کوئی بھی اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ ملائکہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جو ایمان کا دوسرا جز ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ رب کائنات نے یہ چاہا کہ اس کا کام اس کے بندوں کے ذریعے سے تدبیر کے ساتھ ہو، چنانچہ رب کائنات نے تدبیر کے طور پر فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دیا۔ چلو بارش کا برسانا تمہارا کام ہے، چلو رزق کا پہنچانا تمہارا کام ہے، چلو ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانا تمہارا کام ہے، چلو تمہارا کام روح کو قبض کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک مخصوص اور سب سے اہم، سب سے فضیلت والے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کام بتاتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارا کام میرا پیغام میرے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے وہ فرشتوں کی نگرانی میں ہی چل رہا ہے۔ خود ہمارے دونوں شانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، اور ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا کرتے ہیں وہ اس کی تحریر کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب فرشتوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسرے جز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آمنو باللہ و رسولہ و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لے آنا ہے۔ کتابیں اللہ رب العزت نے متعدد نازل فرمائی، جس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور دوسری کتابیں جو بھی آسمانی تھیں وہ زمانے کے خرد و برد سے محفوظ نہ رہ سکیں اور سب ختم ہو گئی یا ان کی صورتیں تبدیل ہو گئی۔ اب اپنی اصلی صورت میں اگر کوئی کتاب ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو پھر وہ قرآن پاک ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیتے ہوئے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن یا ذکر کو ہم ہی نازل فرمائے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل یا دوسرے صحائف، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں رہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، بلکہ اس کی حفاظت اس قوم کے ذمہ تھی، اور قوم نے اپنے اعتبار سے اس کو گھٹا دیا، بڑھا دیا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ بہرحال کتابوں میں سب سے افضل جو کتاب ہے اور جو موجودہ صورت میں باقی ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبیوں کی ایک جماعت ہمارے درمیان مبعوث فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے رب کریم کی طرف سے بھیجے گئے، اور سبھوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دی۔
سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور اب آپ کی نبوت اور رسالت ایسا سکہ رائج الوقت ہے کہ جو کبھی مات نہیں پڑنے والا، اور آپ کی رسالت قیامت تک جاری اور ساری رہنے والی ہے۔ پھر آگے کی چیز آتی ہے والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان یا آخرت کے دن پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کی اس دنیا کی ایک نہ ایک انتہا ہے، اس دنیا اور اس ورلڈ، اس جہان کا اینڈ ضرور ہونے والا ہے۔ جس چیز کی بھی ابتدا ہو، یاد رہیں اس کی انتہا ضرور ہوتی ہے۔ واٹ ایور اٹ ہیز دا اسٹارٹنگ ہیز آلسو دا اینڈنگ۔ جو بھی چیز شروعات رکھتی ہے وہ انتہا کو ضرور پہنچتی ہے۔ یہ دنیا پہلے نہیں تھی، بعد میں بنائی گئی، اور 1000 2000 10,000 50,000 کروڑ سال بھی گزر جائے تو گزر جانے کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اب یہ دنیا ختم ہو کر ہی رہنے والی ہے، جس کو ہماری زبان میں قیامت یا آخرت کا دن کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دنیا ڈسٹرائے کر دی جائے گی، جانے والے جنت میں الحمدللہ انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم اور حضور کی عطا سے ہوں گے، اور کفار و مشرکین اور ملحدین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو ابتدائی 6 چیزیں ہوئی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر۔ تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اور جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ کر رہے ہیں۔ یاد رہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے تو ویسے ہی تمہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ذریعے سے یہ جان لیا ہے کہ کون کیا کیسے کرنے والا ہے۔ جو کرنے والا ہے وہی اللہ نے لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے اب بندہ مجبور ہو کر وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ جو بندہ کر رہا ہے اللہ نے اسی کو پہلے ہی سے لکھ کر رکھا ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب وہ انسان کے سمجھ میں آئے نہ آئے، اچھا ہو برا ہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ والبعث بعد الموت، یہ آخری چیز ہے، اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان کے اہم اجزاء میں سے ایک جز ہے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہر ایک چیز کو اپنی عقل کی ترازو پر، اپنے عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ جو ہمارے عقل میں آ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہونے والی ہے، جو عقل میں نہ آئے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے کوئی بھی جاندار انتقال کر گئی، کوئی بھی جاندار چیز ختم ہو گئی، کوئی بھی مخلوق روح پرواز کا شکار ہو گئی، کوئی بھی انسان مر گیا۔ مرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عام حالات میں وہ پھر بیک ٹو لائف نہیں ہوا، اس کو زندگی پھر سے واپس سے نہیں ملی، بلکہ مر گیا تو اس کی کہانی ختم، اس کا افسانہ ختم، اس کی اسٹوری اور اس کی ہسٹری اس اعتبار سے ختم ہو گئی۔ ہم نے چونکہ یہی دیکھا تو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ صاحب جو مر گیا اس کی کہانی ختم ہو گئی، اور جب زندہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ذہن میں بٹھا لیا، ایک کانسیپٹ کریٹ کر لیا کہ مرنے کے بعد زندگی کا کوئی اثر ہی نہیں ہے اور زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان اور مومن ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت نے دلیلیں بھی عطا فرمائی، اور ہم الحمدللہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم سب کو زندہ ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مسئلہ بڑا نازک تھا کہ آدمی شش و پنج میں پڑتا کہ یار کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے پر بڑی واضح دلیلیں عنایت فرمائی، اور قرآن کے تقریباً ہر پارے میں آپ کو مرنے کے بعد زندگی کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ آپ سورہ بقرہ ہی اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ بقرہ کی کہانی اور گائے کی کہانی۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ایک بندے کا قتل کیا جانا، 3 دن تک اس کا مردہ حالت میں رہنا، اور پھر 3 دن کے بعد ایک مخصوص قسم کے گائے کے گوشت سے اس کے سینے پر مارنا، اور پھر اس کا زندہ ہو جانا، یہ خود اپنے آپ میں مرنے کے بعد زندگی کی ایک دلیل تھی۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور دلیل عنایت فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک علاقے سے گزرے، بستیاں الٹی پلٹی ہیں، آپ نے دیکھ کر کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس الٹی پلٹی بستی کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ کتنے؟ پورے 100 سال کے لیے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ فرمایا، اور حضرت عزیر کو زندہ فرما کے ارشاد فرمایا دیکھ لو تم 100 سال تک مردہ حالت میں تھے، مری ہوئی حالت میں تھے، یا موت کی حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ جس طرح سے چاہے اسے خطاب فرمائے۔ موت کی حالت میں تھے، اور دیکھ لو ہم نے 100 سال کے بعد تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ جس طرح سے 100 سال کے بعد تمہیں زندہ کیا جانا پاسبل اور ممکن ہے، اسی طرح سے میرے لیے یعنی اللہ کے لیے یہ بعید نہیں کہ 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی انسان یا جاندار کو زندگی عطا فرما دے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا مولا مرنے کے بعد زندہ کیسے ہونا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے لیے بھی مرنے کے بعد زندگی کی دلیل فراہم کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو میں نے آپ سے بتایا، 4 چڑیوں کو لو، ذبح کرو، ان کا گوشت
अलग अलग पहाड़ों पर रखो, फिर सबको आवाज दो, देखो क्या होता है। आपने ऐसे ही किया, और जब आपने बुलाया तो सारी चिड़ियां उड़ उड़ कर अपने अपने गोश्त पोश्त और अपने जिस्म से जाकर लगी, और जिंदगी के साथ वो चिड़िया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गई। ये दलीलें हुई जो अंबिया कराम से ताल्लुक रखती हैं। अब आपके सामने असहाब कहफ का वाकया भी है, जो अपने आप में खुद एक दलील है कि मरने के बाद जिंदा होना है। असहाब कहफ कौन लोग थे, कहाँ के थे, उनकी सरजमीन कौन सी थी, उनका ज़माना कौन सा था, इसमें कदर इख्तिलाफ है। फिर उनकी तादाद कितनी थी, कुरान पाक ने भी उनकी तादाद मुतय्यन नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया कुछ लोग कहते हैं कि 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ लोग कहते हैं 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, अटकल लगाते हुए ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। उलमा ने लिखा है कि यही कौल कि 7 लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था, यही कौल ज़्यादा मोतबर है और यही कौल ज़्यादा राजे है। उसकी वजह भी उलमा ने बयान फरमाई है, जो तफसीर की किताबों में मज़कूर है। बहरहाल कहफ का मतलब होता है गार, पहाड़ के दामन में जो सुराख रहता है, उससे अंदर जाने का जो रास्ता होता है और अंदर जो जगह होती है, उसी को गार कहते हैं। असहाब कहफ यानी गार वाले लोग, गार में रहने वाले असहाब। हुआ क्या, मैंने अर्ज किया था तरावी के दौरान कि एक जमाना ऐसा आया और गुजरा कि वक्त के बादशाह ने अपनी बर्बरियत और आदम ईमान को जाहिर करते हुए ये कहा था कि अगर किसी ने कहा कि मरने के बाद जिंदा होना है तो फिर उसको अभी सूली पर चढ़ा दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा संगीन मसला था कि आखिर ऐसे माहौल और ऐसे आलम में क्या किया जाए। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ जान है। अगर ये कहते हैं कि मरने के बाद जिंदा होना है तो फिर जान से हाथ धोना है, और अगर ये कहते हैं कि मरने के बाद नहीं जिंदा होना है तो ईमान से हाथ धोना है। ये बड़ा मुश्किल मरहला था। ऐसे में क्या किया जाए। अक्सर लोगों ने जो ईमान वाले होंगे तो उन्होंने दिल में तो ये मान लिया कि नहीं मरने के बाद जिंदा होना है, जबान से ये कहते रहे हाँ जैसे बादशाह कह रहे हैं वैसे ही है, और ये हालात ऐसे हो जाएं तो जायज़ भी हो जाता है। जान बचाने के लिए आप अगर कुफ्र भी बोल दे रहे हैं जिससे वक्ती तौर पर आप महफूज हो जाएं तो बोलने में कोई मज़ाक़ा नहीं है और आपको जान बचाना ही चाहिए। बहरहाल वो कुछ लोग थे, ये चंद लोग जो थे इन्होंने कहा नहीं हम तो अपनी जान भी बचाएंगे और अपना ईमान भी बचाएंगे, अपना सारा असासा घर बार दौलत सारा कुछ छोड़ के वो अल्लाह की राह में निकल गए। और इन्होंने क्या किया, अपने साथ कुछ माल रखा कि जहां भी जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो आखिर क्या खाएंगे क्या पिएंगे कैसी चीजें खरीदेंगे, कुछ माल अपने साथ रखा और निकल गए। और जब निकले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बास बादल मौत की दलील बन गए। चल रहे हैं, रास्ते में एक कुत्ता नजर आया, कुत्ता भी इनके पीछे पीछे हो लिया। जब कुत्ता पीछे हो लिया तो इन्होंने कुत्ते को मारकर हटाना चाहा, भगाना चाहा कि अगर आता है और हम कहीं जाते हैं, ये कुत्ता अगर आवाज लगा दे भौंकने लगे तो लोग जान जाएंगे कि इधर कुछ लोग जा रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जिस इलाके से हम गुजरेंगे हम तो अपने कदमों के निशान मिटाते हुए जाएंगे, लेकिन अगर कुत्ता जाता है तो हो सकता है कुत्ते के कदमों का निशान लोगों को मिल जाए और लोग तलाश करते करते हम तक पहुंच जाएं। इन्होंने कुत्ते को हटाना चाहा, भगाना चाहा, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कुत्ते को जबान अता फरमाई और कुत्ते ने भी कहा हम उस इलाके में रहना पसंद नहीं करते जिस इलाके में लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कमा हक़्क़हू ईमान न रख रहे हों, बास बादल मौत पर ईमान न रख रहे हों, हम ऐसे धरती पर रहना पसंद नहीं करते। ठीक है तुम भी चलो, और कुत्ता भी इनके साथ हो लिया। कुत्ते का नाम किताबों में कितमीर आता है, कितमीर। कितमीर मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि अगर आपको कुत्ता दौड़ाए काटने के लिए आप फौरी तौर पर खड़े होकर कहें या कितमीर अलमदद, और जमीन पर थूक कर और अपने कदमों से उसको आप दबा दें तो कोई भी कहीं का भी कुत्ता हो वो आपको काट नहीं सकता। ऐसा मैंने सुना है और बाज़ हालात में इसका तजर्बा भी हुआ है। अला कुल्ली कुत्ता भी उनके साथ रहा और ये हजरात गार के अंदर पहुंच गए। गार में पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई कि चलो यहीं आराम करते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और ये हजरात गार के अंदर पहुंचे, सो गए और कुत्ता गार के ऊपर इनकी निगरानी और निगहबानी करने के लिए बैठ गया। अब देखें ये गार के बीच में है, गार के बीच में है। अल्लाह की कुदरत देखें, सूरज जब चल के आता है तो बिल्कुल सीधा सीधा आता है, उसकी एक गर्दिश बनी हुई है उसी पर चलता है वो। ये बिल्कुल सीधे सीधे गार में थे। सूरज आता अगर सामने से आता तो धूप इनके ऊपर जरूर पड़ती, लेकिन अल्लाह का करम देखें, खुद कुरान मुकद्दस में ये इरशाद है कि सूरज जब चलते हुए आता, जब गार के दहाने और मुंह के करीब सूरज पहुंचता तो सूरज थोड़ा सा टर्न हो जाता, थोड़ा सा टर्न हो जाता ताकि धूप इन असहाबे कहफ के ऊपर न पड़े और इनको खलल ना आ जाए। आप सोचें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो निकला है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद भी उसके लिए शामिल हाल हुआ करती है। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, एक दिन, एक साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, और ऐसे करते 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 आपको पता है कितने साल गुजर गए?
309 साल गुजर गए। 309 ईयर्स, 309 ईयर्स, 309 साल गुजर गए। आम हालात में किसी की ज़िंदगी भी 300 साल नहीं होती है। आजकल तो 50, 60, 70, 80 और 80 के बाद तो बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को हयात मिले। इल्ला माशाअल्लाह 90 पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने लोगों में कोई 80 तक पहुंचने वाला नहीं होगा अभी। आपकी उम्र कितनी होगी? 55। देखें, मुझे सबसे ज्यादा बुजुर्ग लग रहे हैं 55 साल के हैं। बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 60 के लमसम है, तो आप समझ सकते हैं 60, 65, 55, 50 और आखिर जो उम्र है इस उम्मत की लमसम 70 है। 70 से क्रॉस बहुत कम लोग करते हैं, वरना 70 या 70 के करीब में लोग अल्लाह की रहमत में चले जाते हैं। आप सोचें 70 साल लोगों की उम्र होती है और 70 साल कितना बड़ा वक्फा होता है हमारे लिए, कितना बड़ा वक्फा होता है कि आदमी उसमें न जाने क्या क्या कर जाता है। एक जहान का सफर करता है, दुनिया देखता है, चीजें बनाता है, तजर्बात करता है, घर बनाया, फैमिली बनाई, सारा कुछ बनाया और 70 साल के बाद चला जाता है। और ये असहाबे कहफ एक 70 साल नहीं बल्कि 70 को अगर 3, 4, 5, 7 बार मल्टीप्लाई करें तब जाके कहीं वो 309 साल पहुंचेगा। 309 साल तक ये मौत की सूरत में रहे। अल्लाह ने इनको वफात दे दी थी और इसी 309 साल के साथ, मौत के साथ, वो गार के अंदर मौजूद रहे। वक्त गुजरता रहा, जमाना बड़ी तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता रहा और एक वक्त वो आया, जमाना गुजरा, एक वक्त वो आया कि जिस मुल्क में ये रहते थे उस मुल्क का बादशाह मुसलमान हुआ, ईमान वाला मुसलमान बादशाह आया। उस मुल्क में मरने के बाद जिंदगी के हवाले से बड़ी रस्साकशी हुई, आपसी इख्तिलाफ और डिस्प्यूट हुआ। मरने के बाद जिंदा होना है, नहीं होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, ये सारी चीजें सामने आई। तो फिर बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कि मौला मरने के बाद जिंदगी के क्या असरात होंगे और किस तरह से जिंदगी होगी, मौला इसके लिए दलील फराहम फरमा दे। अल्लाह का करना देखो कि रब्बे कायनात ने उन्हीं अय्याम में असहाबे कहफ को 309 साल की मौत देने के बाद जिंदा फरमा दिया। और ये जब जिंदा होकर लोगों के दरमियान पहुंचे तो फिर लोगों की सदाएं यही थी कि रब्बे कायनात ने मरने के बाद जिंदगी पर जो ईमान का सलीका और तरीका होता है, तस्दीक के लिए हमारे पास ऐसी अलामत और ऐसा वाकया पेश कर दिया है कि अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। हुआ क्या? हुआ यूं कि 309 साल के गुजर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन असहाब को नींद से जगा दिया। जाहिर है जब तक ये सोए रहे या जब तक मौत की हालत में रहे तब तक ना तो भूख है, ना प्यास है, ना और कोई जरूरत है। बताया यह गया कि इनका नाखून भी नहीं बढ़ता था, बल्कि इनका बाल भी नहीं बढ़ता था। जैसे थे वैसे ही थे, जैसे थे वैसे ही रह गए। दाढ़ी के बाल अगर काले थे तो काले ही थे और 309 साल गुजर गए। जब उठे तो उठते ही आपस में गुफ्तगू करते हैं और कुरान कहता है क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम। एक ने लोगों से पूछा कि हम लोग कितनी देर तक यहां ठहरे? फॉर हाउ लॉन्ग वी स्टेड इन दिस केव, फॉर हाउ लॉन्ग वी स्टेड इन दिस केव, कितने दिन तक हम इस गार के अंदर रहे? कालू लबिसना यौमन औ बाब यौम। तो अक्सर लोगों ने कहा कि एक दिन या आधा दिन, मे बी 1 डे और मे बी हाफ ऑफ डे। हो सकता है हम सिर्फ एक दिन हम इस गार में रहे, या हो सकता है कि एक दिन नहीं बल्कि आधा दिन, आधा ही दिन रहे। आप सोचें इतना लंबा वक्फा गुजर जाने के बाद, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद जब उठे हैं तो इनको पता ना रहा कि हम कितनी देर तक इसमें रहे, कितनी देर तक रहे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब ये पहुंचे थे गार में तो हो सकता है सुबह का वक्त हो और जब उठे तो शाम का वक्त, और 309 साल के बाद ये वाकया पेश आया। तो इन्होंने सोचा कि हम सुबह में आए थे और शाम है तो आधा दिन, या हो सकता है कि सुबह में आए थे तो हो सकता है हम सोए रहे, पूरा दिन गुजरने के बाद शाम का वक्त आया है उसमें हम उठ रहे हैं। फिर बाद में लोगों ने कहा अरे छोड़ो, हम आधा दिन या एक दिन ये सब छोड़ो, अल्लाह जानता है कि हम कितने दिन ठहरे, कितना दिन हम ठहरे वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब भूख लगी तो फिर लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यार पैसा जमा करो, और जमा करने के बाद किसी एक बंदे को भेजते हैं। और ध्यान रहे जो भी जाए सामान लेने बहुत एहतियात के साथ, किसी से बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और जाकर अनजान इलाके से खाना लेना। जो हमारा शहर है उस शहर की तरफ मत जाना, अनजान इलाके की तरफ जाकर वहां से खाना ले आना। यहाँ पर यह तवज्जो की बात है, ये ना सोचा जाए कि ये लोग अल्लाह की राह में निकल रहे थे तो पैसा और माल लेकर निकले। हाँ, अल्लाह पर भरोसा करके और असबाब, जिंदगी के जो असबाब हैं उनकी राहें साथ में लेकर चलना, ये अल्लाह वालों का तरीका है। तकदीर और तदबीर ये दोनों उमूर साथ में लेकर चलना चाहिए। बहरहाल एक बंदे को सोने का सिक्का देकर, जो उस जमाने में 309 साल पहले चल रहा होगा, उस जमाने का सिक्का लेकर भेजा कि जाओ, और सब समझा रहे देखो बहुत आराम से, हाँ बहुत आराम से, बहुत ज्यादा बात मत करना, एहतियात से काम करना। जिस तरह से आप सिचुएशन समझ सकते हैं, हालात खराब हो तो आप अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं देखो बेटा सफर में जा रहे हो, हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा सियासत की बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो मूजी है वो मूजी है, हाँ जो मूजी है, मूजी का मतलब जो तकलीफ देने वाला है वो है,
तो अपने आप को इस तरह की बातें करके और तकलीफ में मत डालना, अपना काम करो, हो सके तो बात ज्यादा मत करो, हो सके तो एसी का सफर करो कि वो महफूज होता है। जैसे हम एहतियात करते हैं वैसे उन्होंने भी एहतियात का दामन पकड़ा, कहा ज्यादा बात मत करना। ये सोने का सिक्का लेकर ये बंदा निकला और जाकर सामान खरीदने की कोशिश किया, और यही यहां जहां हम पहुंचे हुए हैं अभी कि सोने का सिक्का लेकर जाओ और नरमी के साथ बात करो। यही जो नरमी के साथ बात करो, ये नरमी, ये जो नरमी है ना, नरमी कौन सा लफ्ज बोले जोर से, मैं इस पर फोकस इस वजह से कर रहा हूं कि बात बताना है आपको। नरमी से बात करना, नरमी का मुजाहरा करना, नरमी का अंदाज इख्तियार करना, और किसी को हमारे बारे में बताना मत। ये जो नरमी है ना, ये नरमी, यही नरमी पूरे कुरान पाक के दरमियान का हिस्सा है। इस तरफ आधा और इस तरफ आधा, बीच में जो लफ्ज है कुरान में वो है क्या, नरमी वाला लफ्ज है। उसके लिए अरबी में लफ्ज आता है वल यतलत्तफ, नरमी इख्तियार करे। तो ये नरमी जो है ना, ये बीच की चीज है। वैसे भी नरमी बीच की चीज होती है। सख्ती दिखाएंगे मामला बिगड़ जाएगा, बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएंगे फिर भी मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, नरमी का मुजाहरा करें, दरमियानी रविश इख्तियार करें। दरमियानी रविश नरमी वाली रविश है, और अल्लाह का करना देखो कि यही लफ्ज पूरे कुरान के दरमियान का हिस्सा बना, यही लफ्ज। बहरहाल ये गया बंदा और जाकर खाने की तलाश करता है। कहता है, लोग कहते हैं कि जाओ और जाकर खाना लाओ, लेकिन किसी से हमारे बारे में बताना मत। क्यों? इसलिए कि अगर बता दोगे तो वो हमको पत्थर मारते मारते मार डालेंगे। क्योंकि ये सब यही सोच रहे थे कि वही बादशाह होगा पुराना वाला, पत्थर मारते मारते मार डालेंगे, या ये कि फिर अपने मजहब में हमें लौटा लेंगे, और ये हमें पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। और जब ये बंदा पहुंचा शहर में तो देख रहा है कि अब तो वो जबान भी लोग उस तरह से नहीं बोल रहे हैं जिस तरह से ये बोल रहे हैं। जाहिर है आप खुद अंदाजा लगाए होंगे, अनवर भाई उसकी तस्दीक करेंगे और जो यहाँ पर ज़ईफ हज़रात है वो भी तस्दीक करेंगे। आपके बचपन में बंबई की जो जबान होगी क्या बेआईन ही वैसे ही है जो आज है? पहले की जबान और आज की जबान में कुछ न कुछ तो जरूर फर्क आया होगा। मिसाल के तौर पर पहले लोग ज्यादा कहते थे आप जाएंगे, अगले बंदे के लिए कहते हैं आप जाएंगे, और अपने के लिए कहते थे मैं जाऊंगा। लेकिन अभी आम हालात में बंबई में क्या है, आप जाएंगे और अपन भी जाएंगे, अपन अपन जाएंगे, अपन। तो अपन, ये जो अपन है ये बात की पैदावार है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं जो आ जाते हैं जबान में और धीरे धीरे वो मुंतकिल भी हो जाते हैं, कुछ नए अल्फाज आ जाते हैं। इसी जमाने में फारसी का रिवाज था, अरबी का रिवाज था, इंग्लिश का। आज देख लीजिए बंदा उर्दू बोल रहा होगा लेकिन इतनी ज्यादा इंग्लिश उसमें घुसेड़ देगा कि आप कहेंगे या तो इंग्लिश ही बोल ले, इंग्लिश ही बोल ले। मैं टॉक कर रहा था और वॉक के इन बिटवीन देयर वाज अ पर्सन, माय गॉड, कन्वर्सेशन ऐसा हुआ कि यू कांट बिलीव। मतलब पूरी कॉकटेल बना दिया जबान को। तो जबान में फर्क होता है। ऐसे ही जब ये बंदा गया तो उसने देखा जबान तो बहुत फर्क हो गई है, बहुत ज्यादा फर्क आ गई है जबान में। बहरहाल इसने कहा हमको इससे क्या लेना देना, हमको तो अपना काम करना है, आगे बढ़ जाना है। और जब जाकर सामान लिया तो सामान भी बदला हुआ है। बहरहाल हलवाई या किसी रेस्टोरेंट में जाकर वो खाने पीने की चीजें ऑर्डर करके लेता है, ले तो लिया, और जब पैसा दिया तो वो पैसा जो उस जमाने में चल रहा था उसका चलन भी खत्म। आप देखो, हम और आपने भी तो देखा है कि वक्त वक्त पर पैसे का रिवाज खत्म होता जाता है, और हमने तो पूरी हिंदुस्तान में तो देखा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि पैसा जब चेंज हुआ, जिसको क्या बोलते हैं नोटबंदी, नोटबंदी जब हुई तो किसी के पास कितना है, किसी के पास कितना है, वो सब जल्दी जल्दी उसको बदलवाए, वरना फिर वो काम में नहीं आएगा। अब अगर वो पुराने वाले नोट किसी के पास हो, कुछ काम आएगा? वो तो नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पैसा सोने की सूरत में होता, सोने का सिक्का होता, तो आज भी काम आता। उनका जो पैसा था, जो 309 साल पहले का पैसा था, वो सोने का सिक्का था। अब चांदी का सिक्का या कोई और सिक्का रिवाज में आ गया था, और जो जैसा बादशाह आ जाए वो अपना रिवाज चलन चलाता रहता है। ठीक 309 साल के बाद रिवाज बदल गया, पैसे का रिवाज बदल गया। जब बदला और जैसे ही इसने सोने का सिक्का दिया कि अब पैसा दो, सामान लो और जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुंचकर उनको खिलाओ पिलाओ और आराम से रहो, जैसे ही पैसा दिया दुकानदार ने हाथ पकड़ लिया, मियाँ कहीं से माल मिला है, कहीं से बड़ा माल मिला। कौन हो तुम, बताओ कहाँ से आए हो? अब ये तो थर 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 कांपने लगा, यार अब तो पकड़े गए। नहीं नहीं, हम तो यही कह रहे हैं, यहाँ कहाँ को बताओ, किस इलाके को। अब इसकी हालत खराब की, जबान भी अलग, कहा ये पैसा चलता ही नहीं यहाँ, ये पैसा कैसे नहीं चलता, यही चलता है। आपसी आर्ग्यूमेंट हुई, मुनाकशा हुआ, थोड़ा बातों की बात हुई, बातों बातों में फिर जब और लोग जमा हो गए और आपसी गुफ्तगू करने लगे, तब इस बंदे को ये एहसास हो गया, हो ना हो जमाना गुजर चुका है, जमाना बदल चुका है। लोगों ने इससे इसरार किया कि तुम सही तौर पर बताओ कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, कहां ये पैसा तुम्हारे पास आ गया, किस तरह से तुम, कैसी तुम्हारी सिचुएशन, वगैरह वगैरह वगैरह। जब इसने समझ लिया और लोगों को अल्लाह की कसम खाते हुए भी देखा, लोग अल्लाह की कसम खाते रहे, अल्लाह की कसम ये पैसा बहुत पुराना है, अल्लाह की कसम बहुत पुराना पैसा है। वो किस्तीन नाम का या इस नाम का बादशाह कमीना गुजरा था, उस जमाने का ये पैसा है। अरे वो तो सदियां गुजर गई, इन 300 साल 400 साल पहले की बात है, और ये पैसा अल्लाह की कसम उस जमाने का। तब इसको समझ में आ गया कि जब ये लोग अल्लाह की कसम खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वो जमाना नहीं है, क्योंकि उस जमाने में तो अल्लाह का नाम लेना ही अपने आप को छुरी के नीचे रखना था।
तब इसने सारा मामला जाहिर कर दिया कि देखो 309 साल पहले ऐसा ऐसा मामला हुआ था, हमने अपनी जान बचाने और ईमान बचाने के लिए सफर किया और हम जाकर गार में ठहर गए और गार में हमारे दूसरे साथी भी ठहरे हुए हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको ऐसे ऐसे जिंदगी अता फरमाई। ओ जाहिर है वो जब ये ऐसी बात आई तो धड़ाम से ये बात पूरा बम कर गई। अरे इतना जमाना गुजरने के बाद बादशाह तक बात पहुंच गई, बादशाह भी आ गया, भाई जाहिर है बादशाह भी आ गया, उसने भी तस्दीक करवाई, क्या बात है, कहां से आए हो, कैसा है, वगैरह वगैरह। तो फिर बादशाह ने कहा मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि मौला मरने के बाद जिंदगी के ऊपर तू दलील अता फरमा दे, और अल्लाह ने मेरी सुन ली और इन लोगों को बतौर दलील हमारे लिए अता फरमाया। अल्लाह अकबर। बादशाह ने अपने लोगों को लिया, लाओ लश्कर को लिया, साथियों को लिया, और उस जमाने में जो भी तरीक़ेकार रहा हो, ढोल डुग्गी नगाड़ा सब लेकर कि हमारी दलील मिल गई, अल्लाह की तरफ से दलील मिल गई, अल्लाह की तरफ से दलील मिल गई, चलो। और असहाबे कहफ की तरफ सब लोग गए। असहाबे कहफ जो शहर से दूर थोड़े थे, अब जब वो लोग जो बीच में सोए हुए गार में हैं, उन्होंने आवाज सुनी, शोर शराबा सुना, यार इसने तो मरवा दिया, इसको बोले थे खाना लेके आना और ये जाके मरवा दिया, पकड़ा गया, खुद भी मारा जाएगा, हमको भी मरवाएगा। और जब आके इन्होंने बाहर देखा तो पूरी फौज आ रही है, कहा आप तो भागना भी मुश्किल है, भाग भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। बादशाह आया, आने के बाद इनका इस्तकबाल किया कि अल्लाह आपको सलामत रखे, और आप लोगों ने जो काम अल्लाह के जरिए से किया है वो हमारे लिए दलील है। और फिर सारी कहानी उसने भी बताई। अल्लाह अकबर। फिर इन असहाबे कहफ ने कहा कि जब हम अल्लाह की तरफ से दलील हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने इसी गार में चले जाएं, गार को बंद कर दिया जाए और हम इसी में आराम फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। गार बंद कर दिया गया, और आज भी ये अरब के किसी खित्ते में, सऊदी के नहीं, जॉर्डन उर्दुन वगैरह के किसी खित्ते में किसी एक गार के अंदर ये आज भी सोई हुई हालत में मौजूद हैं। अलबत्ता गार ऊपर से बंद है और खोलने की ना तो शरअन इजाजत है और न ही कानूनन इजाजत है। ये लोग आज भी वहां पर मौजूद हैं। बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने ये किया कि यार ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने इनको कितनी लंबी दलील के तौर पर हमें अता फरमाया है, क्या कर सकते हैं यहाँ? उसके गिर्द में जहां उनका कह लीजिए मजार है, उसी के ऊपर बादशाह ने एक मस्जिद बनवा दी, एक मस्जिद वहीं पर बनवा दी, और गोया ये दलील दे दी कि जहां अल्लाह वाले लेते हों वहां मस्जिद होना चाहिए, जहां अल्लाह वाले लेते हों वहां मस्जिद होना चाहिए। और आज तक ये रविश चली आ रही है, जहां पर अल्लाह के किसी वली का मजार है वहां जरूर भी जरूर इर्द गिर्द में मस्जिदें हैं, मस्जिद है या मस्जिदें हैं। आप बहुत दूर न जाइए, मखदूम माहिम को देख लीजिए, वहां मस्जिद है। आपके शहर बंबई में सुल्तान बहर समंदर के बादशाह हजरत हाजी अली को देख लीजिए, उनकी बारगाह में मस्जिद है। और आप हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तानुल हिंद हजरत गरीब नवाज की बारगाह देख लीजिए, वहां तो आलम यह है एक नहीं दो नहीं कई कई मस्जिदें हैं। और इसी तरह से आप जहां भी औलियाए किराम आराम फरमा है देख लीजिए, आपको मस्जिद जरूर मिलेगी। एक फिरका है जो कहता है ऐसी मस्जिदें जहां पर कब्रें हों वहां पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। मैंने कहा यार तू अपनी मंतिक अपने पास रख, और तू अपना मसला अपने पास रख। हम तो वो लोग हैं जो जमाने कदीम से चली हुई रिवायत को देख रहे हैं कि अल्लाह के वलियों के इर्द गिर्द में या उनके ऊपर मज़ार के ऊपर मस्जिद बनाई गई और लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं। अगर ऐसा ही है वहां नमाज पढ़ना जायज नहीं है तो फिर क्या कहोगे? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुअल्ला के इर्द गिर्द में मस्जिद का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो मज़ार जो हुजूर का है वो मस्जिद के दायरे में आता है, लेकिन वहां नमाज होती है और ये चौगादा कहता है कि नमाज नहीं होगी। बहरहाल ये है वो कहानी जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल 100 साल करोड़ साल मुर्दा रहने की हालत के बावजूद भी जिंदा करने पर कादिर है। और जब वो मरने के बाद जिंदगी देने पर कादिर है, वो जिंदगी देता है, तो फिर काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ऐसा काम करना है जो अल्लाह की रजा और उसके रसूल की रजा का सबब बने, क्योंकि हमको मरने के बाद जाना ही जाना है और इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ताकीद है और हम सबको अमल भी उस पर करना चाहिए कि नेक अमाल करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, मिनहा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी के अंदर हम तुमको एक मर्तबा फिर ले जाकर रख देंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से एक मर्तबा फिर तुम्हें जिंदगी देकर क़यामत के मैदान में ले आएंगे, मैदान महशर में ले आएंगे। हिसाब किताब के बाद तुम्हारा ठिकाना या तो जन्नत होगा या तो जहन्नम होगी। ये असहाबे कहफ की कहानी है जिससे हमें बहुत सारी चीजें साबित होती है और मिलती हैं। एक तो ये ईमान अगर आपका पक्का हो तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। दूसरी ये कि अल्लाह के वलियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़े खुसूसी इंतजामात होते हैं कि सूरज भी पलट जाता है, इर्द गिर्द हो जाता है। तीसरी ये कि तुम अल्लाह के लिए काम करो, सारी मखलूक आपके लिए काम करने लगेगी, कुत्ता भी आपकी हिमायत में आ जाएगा। चौथी चीज ये कि मरने के बाद जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत आसान चीज है, ये कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। और सबसे अहम ये कि मरने के बाद जिंदा होकर अजाब व सवाब जो हमारे इस्लाम का बुनियादी और इस्लाम का हकीकी रुकन है, उस पर यह सबसे बड़ी दलील है। इस वजह से हमको इस तरह के वाकयात पढ़कर फिर अपने आप में मुहासबा करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए।
رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم کو آپ کو سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اجزائے سبعال الایمان ایمان کے ساتوں اجزاء پر کما حقہ ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پر ہماری زندگی ہو اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، مولا اس کی بھی ہم کو اور سب کو توفیق نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا إله